شباب آ گیا اس پر شباب سے پہلے، دکھائی دی مجھے تعبیر خواب سے پہلے، جمال یار سے روشن ہوئی میری دنیا، وہ چمکی دل میں کرن مہتاب سے پہلے، دل و نگاہ پہ کیوں چھا رہا ہے ایسا کہ یہ تیری آنکھ کا نشہ شراب سے پہلے، ناپیش نامہ اعمال کر ابھی اے جوش، حساب کیسا یہ روز حساب سے پہلے۔ ناول عشق محرم قسط نمبر 26۔ روحین کی آنکھیں جب کھلیں تو وہ خود کو بیڈ روم میں اکیلے پا کر بیڈ سے نیچے اتری اور بے قراری سے بیڈ روم سے باہر نکل کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ مطلب وہ اس سے ملے بنا صبح سویرے شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ جب پوری حویلی کے سوئمنگ پول ایریا میں آ گئی اور اپنا منہ لٹکا کر سامنے رکھے بہت ساری کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھی یہ سوچ کر آنسو بہانے لگی کہ تبھی ایک پپی کی آواز پر وہ ایک دم سے اٹھی اور اپنی نظریں اپنے ارد گرد دوڑا کر اس آواز کا تعاقب کرنے لگی۔ تو پول میں وائٹ خوبصورت بالوں والے پپی کو دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھی اور پول کے کنارے بیٹھ کر اس پپی کو اپنی جانب بلانے لگی۔ اسے سوئمنگ کرنا نہیں آتا ورنہ وہ اس پپی کو خود باہر نکال لیتی۔ سویٹی کہاں ہو تم؟ آرزو اس دشمن جاں کے پورشن میں اسے دیکھنے کے لیے اپنے پپی کے بہانے آئی تو سوئمنگ پول ایریا میں اس کے بجائے اس لڑکی کو دیکھ کر وہ نفرت کی چنگاریاں لیے غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ آپ کا پپی ہے؟ روحین جو اس پپی کے قریب آنے پر وہ اسے نکال رہی تھی، اس لڑکی کو شدید غصے سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ کھڑی ہو کر پپی کی جانب اشارہ کرتی جو سردی کی وجہ سے اب اس کی باہوں میں بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ آرزو سے پوچھنے لگی، اوہ میرے سویٹی کو پول میں تم نے دھکا دیا تھا نا؟ وہ اس کے ہاتھوں میں اپنا پپی دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے پپی کو غصے اور نفرت سے چھینتے ہوئے کہنے لگی، نہیں میں نے نہیں دیا تھا، وہ خود۔ روحین اس کی بات پر گھبرا کر جلدی سے اپنی صفائی میں کہنے لگی تو آرزو نے شدید غصے سے اسے گھورا، جھوٹ مت بولو، تم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، تم نے پہلے مجھ سے میرے سلطان کو چھینا، اب میرے سویٹی کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتی ہو؟ وہ شدید نفرت سے بولی۔ نہیں میں نے کسی کو نہیں چھینا، روحین اس کی بات پر تڑپتی ہوئی بولی، اور جسٹ شٹ اپ، تم اتنی خوش قسمت نہیں ہو اور ہو ہی نہیں سکتی کہ تمہیں وہ ڈیول پسند کرے۔ ضرور تم نے کچھ کیا ہے جو وہ اتنا پاگل ہے تمہارے لیے، جو میں اتنے سالوں سے نہیں کر پائی اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تم نے صرف اسے 7 ماہ میں پھنسا لیا، کیسی بے غیرت لڑکی ہو تم۔ وہ حلق کے بل چلاتی ہوئی بولی تو روحین پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو جنگلی بلی بنے اسے نوچنے کے لیے بے تاب نظر آ رہی تھی۔ شٹ اپ، تم مجھے گالی نہیں دے سکتی، میں کوئی ایری گہری نہیں ہوں، تمہاری بھابھی ہوں تو مجھ سنبھال کے بات کرو۔ وہ اپنے لیے گالی سن کر شدید غصے سے بولی، او بھابھی، اس خوش فہمی سے نکل جاؤ کیونکہ بہت جلد میرے اندر جلتی حسد کی چنگاریاں اور میرا یہ نظر بد جو تم دونوں کو اس روز اتنے ایک دوسرے کے بے حد پاس ایک ساتھ دیکھ کر میری آنکھوں کو جلا رہا ہے، ایک دن تم دونوں کو جدا کر کے مجھے تمہاری سوتن بنا کر رہے گا۔ آرزو کی آنکھوں میں حسد دیکھ سکتی تھی اور یہی چیز روحین کو خوفزدہ کر گئی۔ آرزو سے نفرت سے پیچھے دھکا دیتی طنزیہ انداز میں کہنے لگی تو روحین ان بیلنس ہو کر پیچھے سیدھے پول میں جا گری اور ڈوبنے لگی۔ آپ پلیز مجھے باہر نکالو، پلیز مجھے تیرنا نہیں آتا، وہ اپنا سر باہر نکال کر تڑپتی ہوئی کہنے لگی۔ یہ تو میرے لیے اور بھی اچھا ہے، تم مرو گی تو سلطان مجھے آسانی سے مل جائے گا، پھر وہ تمہیں بھول کر مجھ سے شادی کر لے گا۔ آرزو نیچے جھک کر ہنستی ہوئی کہنے لگی تو روحین اتنی سفاکیت پر پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو سامنے کھڑی تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی اپنے پپی کے سر کو سہلا رہی تھی۔ نہیں، وہ مجھ سے عشق کرتے ہیں، وہ تم جیسی حاسد لڑکی سے کبھی شادی نہیں کریں گے، وہ اس کی بات پر سخت لہجے میں کہتی اسے دیکھنے لگی۔ میں کالا علم کے ذریعے اس عشق کو ختم کروا دوں گی، وہ صرف مجھ سے عشق کرے گا، صرف مجھ سے، وہ جنونی انداز میں کہکا لگاتی ہوئی سفاکیت سے بولی تو روحین اس فقط 20 سال اپنی ہم عمر لڑکی کی بات پر شوق نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم کتنی بے حس گھنونی لڑکی ہو، مجھے اس دن تمہاری آنکھوں میں حسد صاف نظر آیا تھا، مگر میں نے اس دن اس چیز کو ٹالا، لیکن آج نہیں ٹال سکتی میں اس چیز کو، پلیز مجھے باہر نکالو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں سلطان کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ اس دن اس لڑکی کی آنکھوں میں نفرت کے علاوہ حسد بھی دیکھ چکی تھی، مگر اسے اپنا صرف خیال سمجھ کر اس نے ٹالا۔
مگر آج اس کے ظلم نے اسے بتا دیا کہ اس کے اور سلطان کی محبت کو نظر لگ چکی ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اس پول میں ڈوب کر مر جاؤ، ورنہ اگر تم اس بار اس پول سے نکل گئی تو اگلی بار میں کچھ ایسا کروں گی کہ سلطان خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دے گا۔ وہ ہنستی ہوئی کہتی اپنے قدم سوئمنگ پول ایریا کے گیٹ کی جانب بڑھانے لگی۔ روہین اسے خود سے دور جاتے ہوئے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ حویلی کے اس ایریا میں اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مر جائے گی، کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ اس کا پیروں میں رینکل آنے کی وجہ سے وہ پانی کی گہرائی میں جانے لگی۔ کیا وہ مرنے والی تھی؟ کیا وہ اپنے سلطان سے جدا ہونے والی تھی؟ کیا آج اس کی سانسیں سوئمنگ پول میں نکل کر اوپر آسمان کی بلندی میں پرواز کرنے والی تھی؟ سوئمنگ پول کی گہرائی میں جاتے اس کے دماغ میں یہی سب چل رہا تھا۔ وہ سوئمنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ گہرائی میں جا رہی تھی دماغ ویسے ویسے سن ہوتا جا رہا تھا۔ 3 سال بعد مسٹر ڈیول اسمائل۔ وہ سیل میں اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیے آنکھیں موندے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اس کی سماعتوں میں اس دشمن جاں کی آواز گونجی جسے سن کر جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا اور اس جانب دیکھنے لگا جہاں وہ کھڑی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے کہہ رہی تھی، روحی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اٹھا اور مسکرا کر اس کا نام لیتے ہوئے لنگڑاتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور سلاخوں سے باہر کھڑی اپنے جان کے چہرے کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر سے شروع ہو گیا یہ عاشق، اب ہمیں ساری رات اس کی مری ہوئی بیوی کی تعریفیں سننی پڑیں گی۔ اپنے پیچھے سے کسی مجرم کی ناگواری سے کہنے پر وہ مڑا اور غصے سے سامنے دیوار سے ٹیک لگائے ان دونوں مجرموں کی جانب دیکھنے لگا جو اس کی سرمئی آنکھوں میں خون اترا دیکھ کر بری طرح سے لرزنے لگے۔ آگے چل کر اس مجرم کو گریبان سے پکڑ کر نیچے پٹک کر اپنا پیر اس کی گردن پر سختی سے رکھ کر وہ جنونی انداز میں کہنے لگا، میری روحی زندہ ہے، وہ مری نہیں، زندہ ہے، سنا تم نے؟ جنونی انداز میں کہتا وہ اس مجرم کو مار مار کر ادھموا کر کے غصے سے ہانپتا ہوا دوبارہ اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجا کر مڑا، مگر اس دشمن جاں کو سلاخوں سے دور الٹے قدموں جاتے ہوئے دیکھ کر وہ آگے بڑھا اور سلاخوں سے باہر ہاتھ نکال کر چیختے ہوئے اسے پکارنے لگا، نہیں روحی جانا، نہیں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، رک جاؤ۔ آج اس بڑے سے جیل میں وہ ترکی کا ظالم درندہ جس کی دہشت سے پورا استنبول کانپتا تھا، آج وہ اپنی محبت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ صبح و شام بس اس دشمن جان کو اپنے آس پاس ہنستے ہوئے تو کبھی روتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ابھی بھی وہ سلاخوں سے دور سفید کپڑوں میں ملبوس حسین پری کو اپنے سے دور جاتا ہوا دیکھ کر نیچے گرتے ہوئے ہاتھ سلاخوں سے نکالے دیوانوں کی طرح روتے ہوئے اپنے پاس بلا رہا تھا، اسے خود سے دور نہ جانے کے واسطے دے رہا تھا، مگر وہ ستمگر اس کی چیخوں کو نظر انداز کیے مڑ گئی۔ روحی! صدمے سے اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ آنکھوں کا مرکز اس وقت بھی وہ دشمن جاں تھی۔ روز وہ اس کے آنسوؤں کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس کرتا تھا۔ آج بھی وہ اس کی آنکھوں کو اشکوں سے لبریز دیکھ کر سینے کو جلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ نہیں روحی، نہیں، مت جاؤ، رکو، مجھ سے دور مت جانا، جانا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ دھندلائی سرمئی آنکھیں اب سامنے اس دشمن جاں کے مرمری وجود کو آہستہ آہستہ سے غائب ہوتا ہوا دیکھ کر تڑپ کر اٹھی اور اس دشمن جاں کے غائب ہوتے خاکے کو دیکھتے ہوئے وہ چیخنے لگا۔ پوری سیل میں اس کی نم بھاری آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ اس پرائیویٹ ہاسپٹل کے وی آئی پی روم میں ہاسپٹل کے سبھی قابل ڈاکٹرز اور عملہ موجود تھے، جبکہ 6 میل نرس بڑی مشکل سے سامنے اس پیشنٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو دنیا کا بے تاج بادشاہ اور لڑکیوں کے دلوں کا سردار تھا، جس نے کل رات خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور کیوں کیا تھا اس نے ایسا، یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا، یہاں تک اس کے سیکرٹری کو بھی نہیں۔ ڈاکٹر سنبل کو بلاؤ جلدی، اس ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر راکیش روشن کمار نے عملے میں سے ایک شخص سے کہا، تو ڈاکٹر رابرٹ نے انہیں پریشان نظروں سے دیکھا جو ان کے دوست اور کلاس فیلو رہ چکے تھے۔ ڈاکٹر راکیش آپ پاگل ہیں، وہ اتنے مردوں سے نہیں سنبھل رہا تو نازک سے ڈاکٹر سنبل سے کیسے سنبھلے گا؟ ویسے بھی وہ عورتوں سے سخت الرجک ہے، یہ اس کے سیکرٹری نے کہا تھا۔ اگر فیمیل ڈاکٹر ان کے قریب گئی تو وہ غصے میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ دورہ مسٹر اے این کو صرف سال میں ایک بار پڑتا ہے، ڈاکٹر رابرٹ نے سخت پریشانی سے کہا۔
क्योंकि सुंबल को वो अच्छे से जानते थे। अगर डॉक्टर राकेश ने उसे मिस्टर ए एन का केस उसे चैलेंज किया, तो वो नाजुक अंदाम लड़की जिद में आकर उस खूंखार शेर के केस को हैंडल करने के लिए उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगी। वो डॉक्टर राकेश रोशन कुमार के कहने पर उस पेशेंट को देखने जा रही थी, जिसकी ताकत काबिलियत का चर्चा पूरी दुनिया के हर रंग और नस्ल के लोगों की ज़बान में था। मगर उसने आज तक उस काबिल इंसान को देखा नहीं था कि वो कैसा है। आज पहली बार वो उसे देखने वाली थी, क्योंकि वो उस हादसे के बाद से इस दुनिया से कट कर रह गई थी। इसीलिए दुनिया में क्या चल रहा है वो उससे अनजान थी। मगर अपने मोहसिन की वजह से उसने ये फील्ड चुनी, क्योंकि मसरूफ़ रहने के लिए उसे ये पेशा बेस्ट लगा था। मिस्टर ए एन, कल रात आपने अपने हाथ का नस खुद काटा था या फिर आपके किसी बिजनेस दुश्मन ने? वो जब उस वीआईपी रूम में दाखिल हुई, तो सामने बेड पर बैठे शख्स को देखकर वो एक लम्हे को सख्त घबरा कर रह गई। फिर दूसरे लम्हे अपने खूबसूरत चेहरे के जाविये दुरुस्त करके वो रूम के अंदर दाखिल हुई और एक कुर्सी खींच कर बिल्कुल उस हसीन घमंडी शख्स के सामने बैठी, जो एक मानूस खुशबू अपने आस पास बिखरते हुए महसूस करता झटके से अपनी सर्द निगाहों को ऊपर उठाकर सामने बैठी लड़की को देखने लगा। तो वो अपनी दुश्मन जान को वहां ना पाकर, जिसकी यादें उसे पूरे 3 साल से जीने नहीं दे रही थी, आज इतने सालों बाद उसकी खुशबू महसूस होते ही वो सख्त बेकरार हो गया। तो अपनी सपाट आंखें ऊपर उठाकर सामने देखने लगा, मगर उसकी जगह किसी हसीन लड़की को देखकर वो नागवारी से अपनी आंखें उस हसीन लड़की के ऊपर से झटके से हटाकर दूसरी तरफ देखने लगा। तो वो इस अमल पर एक पुरसकून सांस लेने लगी, क्योंकि वो उन गहरी बोलती आंखों से सख्त घबराहट का शिकार हो गई थी, और उसके बिगड़ने के डर से एक लम्हे के लिए वो यहाँ से भागने के लिए पर तोड़ने लगी, क्योंकि वो डर गई थी कि वो शख्स उसे देखकर अपने आप से बाहर निकलकर वही ना कर ले जो कल उसने किया था। मगर उसे एक नज़र दिलाने के बाद नागवारी से दूसरी तरफ रुख करने पर वो पुरसकून हो गई और संजीदगी से अपने कटावदार होंठों को वाह करती उससे पूछने लगी, हमने खुद काटे हैं? उसी तरह दूसरी जानिब देखते हुए सर्द महरी से वो गोया हुआ, तो उसकी सर्द आवाज़ पर उसके हाथ पैर फूलने लगे। मगर वो फिर भी खुद एतमादी से बैठकर उसके खूबरू चेहरे की तरफ देखने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है मिस्टर एहन, क्योंकि आप जैसा बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह ऐसी बचकाना हरकत कभी नहीं कर सकता। ज़रूर आप अपने उस दुश्मन जा को मौका दे रहे हैं, जिसने आपकी मिर्गी का फ़ायदा उठाकर आपके नस काटे थे। अब आप अपने पर दोबारा हमला करवाने के लिए ये बात कर रहे हैं, ताकि वो आपके हॉस्पिटलाइज होने का फ़ायदा उठाकर आप पर फिर से हमला कर दे, ताकि आप उसे रंगे हाथों पकड़वाएं। इसी तरह कोई आप पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आपको साल में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ता है। सब समझेंगे आप खुद को बचाने के लिए उस शख्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नफ़ी पे गर्दन हिलाती हुई वो अपने असली ज़िद्दी लहजे में उसे सच बोलने के लिए उकसाने लगी। उसकी हालत देखकर वो तो रूम में दाखिल होते वक्त ही हो गई थी, और इस वक्त उसकी परेशानी उसकी खूबसूरत आंखों में तहरीर भी थी। अगर मैं दोबारा उसे मुमकिन करके दिखाऊं तो? वह एकदम से अपनी आंखें ऊपर उठाकर उसे चैलेंजिंग करती निगाहों से देखते हुए पूछने लगा, तो मिस्टर ए एन, मुझे यकीन आ जाएगा? वो गहरी नज़र उस पर डालते हुए बोली, तो उसे उसकी हसीन आंखें देखकर उसे दुश्मन जां की खूबसूरत आंखों की शिद्दत से याद आने लगी, तो वो तड़प कर अपनी नज़रें उन आंखों से हटा गया। ठीक है। वो उसकी जानिब देखने से गुरेज करते हुए सामने टेबल पर रखे फोर्क बास्केट से छुरी निकालकर अपनी कलाई पर रखकर जुनूनी अंदाज में बोला। तो वह सटपटाकर तेजी से कुर्सी से उठी और उसके मजबूत हाथ को पकड़ने की जसारत कर बैठी, और उसके अमर पर मुकाबिल की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो उसे ये लम्स भी उसे दुश्मन जा की तरह का लगा। तो वह तेजी से अपना हाथ और नाजुक हाथ के नीचे से हटाकर पीछे हटा। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर एन? वो उसके दूर होते ही तड़प कर बोली। खुदकुशी, मुकाबिल सर्द लहजे में बोला। बट वाई? वो फटी आंखों से उसे देखती हुई पूछने लगी। दुनिया वालों को और डॉक्टर साहिबा आपको यकीन दिलाने के लिए कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, ना कि किसी ने मुझ पर हमला किया था। वह सपाट लहजे में कहता उसके हसीन चेहरे की तरफ देखने लगा, जहाँ बेकरारी, टेंशन, न जाने उसके लिए क्या कुछ नहीं था। बट मिस्टर एन, आप क्यों खुदकुशी करना चाहते हैं? आपके पास तो सब कुछ है, फिर आप ऐसी बचकाना हरकत क्यों करना चाहते हैं? वो हैरत से उसे देखती हुई पूछने लगी, तब अपनी नज़रें उस पर से हटाकर सामने खाली सोफे की जानिब देखने लगा। मेरे पास सब कुछ है, मगर सुकून नाम की चीज़ नहीं है।
इसीलिए मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, मगर ये दुनिया वाले मुझे सुकून से वो भी करने नहीं दे रहे, क्योंकि मैं एक कामयाब इंसान हूँ, कोई आम सा एक सड़क पर गिरा हुआ भिखारी नहीं। यहाँ सिर्फ पैसों को पूछा जाता है, इंसान की फीलिंग्स को नहीं। मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये कोई नहीं जानता। और ठहरे हुए लहजे में कहता आखिर में सर्द लहजे में कहने लगा, तो मिस्टर एन, आपकी बचकाना हरकत से बेहतर नहीं है कि आप अपने लिए एक सुकून तलाश करें जिससे आप खुद को बेहतर भी फील कर सकें। वो उसकी बात पर सख्त लहजे में बोली, हाँ, सुकून तलाश करना अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई इंसान बेसुकून नहीं होता। वो इस्तेहज़िया अंदाज में मुस्कुराकर बोला, क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता मिस्टर एन? आप अपने बिजनेस में भी सुकून तलाश कर सकते हैं, या किसी ऐसी चीज़ से जो आपको पसंद हो। वो सख्त की नज़रों से उसे देखती हुई गोया हुई। ठीक है, अगर मेरा इलाज सुकून ढूंढना है तो डॉक्टर साहिबा बताइए, आपकी कुर्बत को मैं कितने में ख़रीद सकता हूँ? वो फुर्तीले लहजे में उससे उसकी कुर्बत की कीमत पूछने लगा, जिसे सुनकर वो साकत हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर एन? वो होश में आती कुर्सी से उठी और गुस्से से उससे पूछने लगी, तो बेड से वो भी उठा और उसके मुकाबिल आकर उसे उसकी नाजुक कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब करता बगौर उसके चेहरे को देखने लगा। तो वो उसकी जुर्रत पर फटी आंखों से उसे देखने लगी। डॉक्टर साहिबा, मैं सुकून तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस के अलावा औरत ही मेरी इस बेसुकूनी को दूर कर सकती है। मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी डॉक्टर हैं, तो आप ही मेरा इलाज कर सकती हैं, चाहे जैसे भी। वो अपनी गिरफ्त मजबूत करता बोझे लहजे में कहने लगा। वो उसकी सख्त गिरफ्त में मचल रही थी, खुद को छुड़ा रही थी, मगर बेसुध। वो अपनी गिरफ्त कमज़ोर करने के बजाय और भी ज़्यादा सख्त कर रहा था। मैं आपकी डॉक्टर हूँ मिस्टर एन, कोई कॉलगर नहीं जो आप मुझे घटिया ऑफ़र कर रहे हैं। और मुझे छोड़ें, मुझे आप जैसे पागल संकी इंसान का इलाज नहीं करना। वो उसके हिसार को तोड़ने के लिए उसकी मजबूत बाहों में गुस्से से फड़फड़ा रही थी, मगर जब बदले में उसे नाकामी मिली तो सुलगती नज़रों को ऊपर उठाकर उसे घूरती हुई बोलने लगी, डॉक्टर साहिबा, देखा, मेरा इलाज आपके पास भी नहीं है तो मुझे मरने दें। क्यों आप अपना भी और मेरा भी वक्त बर्बाद कर रही हैं? शदीद गुस्से और जुनूनियत से वो उसे पीछे बैठ के जानी फेंकने के बाद सख्ती से उसके दोनों कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर जकड़ता वो उसके ऊपर झुका और अपनी सुर्ख आंखों से उसकी खौफजदा आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में कहने लगा, आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो इन 3 सालों में काफ़ी बदल चुका था। अब चेहरे पर नरमी की जगह सर्दपन और नीली आंखों में आग लिए वो अपने छोटे से घर के छोटे से बेडरूम की खिड़की पर खड़ा इस्तांबुल के मशहूर हाया सोफिया म्यूज़ियम को देख रहा था, जो रात में लाइट्स की रोशनियों की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। नाज़ली जो सुर्ख नाइटी में मलबूस वॉशरूम से बाहर निकली, तो उस सितमगर को खिड़की के आगे खामोशी से सिगरेट पीता हुआ देखकर वो आगे बढ़ी और पीछे से अपने हाथ उसके पेट पर रखकर अपना सर उसकी चौड़ी पुश्त पर रखकर अपनी आंखें मूंद गई। वो इन 3 सालों में उसकी दीवानगियों शिद्दतों को बहुत ज़्यादा मिस करने लगी थी, क्योंकि वो बदल चुका था। अब उसे देखना भी शायद गुनाह समझने लगा था। उसकी बेरुखी से उसे अपनी सारी बेरुखियां शिद्दत से याद दिलाकर उसकी 3 साल पहले की तड़पों का बदला लेती। वो अपने पेट पर उसके गोरे हाथों को देखकर शदीद नफरत से उन्हें झटक कर पीछे मुड़ा, तो उसे रात के 2:30 बजे सुर्ख नाइटी में मलबूस देखकर वो उसके होश अरबा हुस्न से भी नहीं पिघला। कीवान, तुम मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देते? क्यों मुझे तड़पाते हो? वो उसके सीने पर सर रखकर आंसू बहाती हुई बोली। अपने सीने पर गर्म लम्स और टप टप आंसुओं को गिरता महसूस करता वो झटके से उसे खुद से दूर कर गया। भरोसा उठ चुका है मेरा इस मतलबी दुनिया वालों से। तुम भी एक मतलबी अपने मफाद के लिए सोचने वाली इंसान हो। पहले जब मुझे तुम्हारी कुर्बत की तलब शिद्दत से सताती थी, तब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता था, मगर तुम मुझे बेरुखी से खुद से दूर कर देती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी। अब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई है तो तुम मतलबी बनकर मेरे करीब आने के लिए तड़प रही हो। वो सख्ती से उसके नाजुक कंधों पर अपनी उंगलियां गाड़ कर सफाकियत से कहता उसे देखने लगा, जो उसकी उंगलियों को अपने नाजुक कंधों पर धंसता हुआ महसूस करती तकलीफ से आंसू बहा रही थी। वो बहादुर लड़की अपने मजाजी खुदा के सितम ज़रीफियों से कमज़ोर हो गई थी। इन 3 सालों में उसके भाई की एक दीवानापन से
वो कीवान कारदाल की दीवानगी को खो चुकी थी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो कीवान कारदाल? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जितना मुझ पर तुम्हारा हक है, उतना मेरा भी तुम पर हक है। वो उसकी सफाक बातों पर सुर्ख आंखों से उसे देखती हुई बोली। आ अब याद आ गई तुम्हें इस रिश्ते के हकूक। तब ये हकूक क्यों मुझे नहीं दिए जब मैं तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा दीवाना था? बताओ मिस नाजली कीवान कारदाल। कीवान कारदाल तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर उसे देखते हुए उसके कंधों पर दबाव बढ़ाकर पूछने लगा। तो नाजली अपने कंधों पर दबाव की वजह से तड़प कर खुद को इस सितमगर की गिरफ्त से छुड़ाने लगी। कीवान कारदार, तुम उन लोगों की तरह जालिम सफाक बन गए हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे भाई ने 3 साल पहले तुम्हारे ख़ानदान को कहीं का नहीं छोड़ा है। और तुम अच्छे से जानते हो कि गलती किसकी है और किसकी नहीं। इसीलिए तुम इन बातों की वजह से मुझे सज़ा नहीं दे सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और जब चाहे तुम्हारे करीब आ सकती हूँ। सुना तुमने? तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते। वो 3 साल पहले के बारे में सोचती और उन जालिम लोगों के बारे में सोचती जिनकी वजह से आज उसका भाई जेल में सड़ रहा है। कीवान कारदार को उनकी तरह जुल्म क्या कहकर कहने लगी, तो ये सुनकर वो पागल सा हो गया। चटाख! एक जोरदार थप्पड़ उसे मारकर बेड पर उसे गिराकर उसके ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखने लगा, जहां सैलाब की सूरत नमी आंखों के गोशों से बह रही थी। जब तुम औरत होकर मुझे रोक सकती हो, तो मैं मर्द होकर कैसे तुम्हें अपने करीब आने पर मैं तुम्हें नहीं रोक सकता? कलाइयों को सख्ती से जकड़कर नफरत से उसकी आंखों में देखते हुए सर लहजे में उसे उसकी बेरुखी सफाकियत को याद करवाते हुए वो कहने लगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। वह नम आंखों से बेयकीनी से उसे देखने लगी, क्योंकि ये 3 साल में पहली बार हुआ था जो इस सितमगर ने उस पर हाथ उठाया था। पहले जब भी वो अपनी नफरत का इजहार करता था तो सिर्फ जबान चलाता था, मगर गुजरते दिनों के साथ बदलते हुए उसके रवैये भी बदलने लगे थे। अब शायद जबान के साथ उसके हाथ भी चलने वाले थे। नाज़नी ये सोचकर बुरी तरह से आंसू बहाने लगी। हाँ, तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। उसकी आंखों में आंखें डालकर वो सफाकियत से बोला। तो ये लो और पकड़ो मेरी गर्दन और निकाल दो मेरी जान। क्यों? रुके क्यों हो? हाँ, तुम मार दो तुम मुझे आज। इस तरह रोज़ मरने से बेहतर है मैं आज ही मर जाऊँ। बेगुनाह होकर क्यों मैं तुम्हारे जुल्म सहूँ? वह उसकी बात पर अचानक से हिज़ानी होकर खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाकर अपनी गर्दन पर उसके मजबूत हाथों को रखकर जुनूनियत से बोली, जबकि कीवान कारदार इन 3 सालों में उसे पहली बार आज इतना गुस्सा करते हुए फटी आंखों से देखने लगा। चटाख! वो मजबूत कद काठ और कुसरती जिस्म का मालिक इंसान को बेकाबू होते हुए देखी बेड पर गिरी खौफजदगी से देख रही थी। जब वो अपने चेहरे के करीब उसके चेहरे को आते हुए देखकर घबराहट के मारे वो जोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारकर उसे देखने लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे एएन को थप्पड़ मारा तुमने? वो बेलगाम शख्स जोरदार थप्पड़ पड़ते ही मजीद बेलगाम होकर उसे नाजुक कंधों से सख्ती से पकड़कर गुराते हुए पूछने लगा। आज छोड़ो मुझे। मुकाबिल नाजुक जान अपने कंधों पर उसकी मजबूत उंगलियों को धंसते हुए शिद्दत से महसूस करती कराह कर खुद को उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़वाने लगी। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है डॉक्टर साहिबा, जो दूसरे को कम और ख़ुद को उनके आगे ऊंची शय समझते हैं। तुम्हारा ये थप्पड़ मुझे उन्हीं लोगों की याद दिला गया है। अब मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया है। वो उसके बुरी तरह से हिलने पर अपनी गिरफ्त में और ज़्यादा सख्ती लाकर आंखों में कहर की सुर्खी लिए तनखो लहजे में कहता। वो अपनी कुर्बत और दहशत से उसकी पेशानी को खौफ के बाइस अरक आलूद कर रहा था, जबकि वो शख्स दोबारा उस नाजुक खौफजदा वजूद से उसी दुश्मन जान की खुशबू से अपने होश खोता बेखुदी से उसके गुलाबी होंठों पर झुकने लगा। पता नहीं क्यों इस हसीना के चेहरे पर इस वक्त उसे वो नज़र आ रही थी जिसके लिए वो 3 साल से तड़प रहा था, जिससे उसके आसपास रहने वालों ने उसके वजूद के कभी ना होने का इतराफ़ किया था, उसे पागल करार दे दिया था। यहाँ तक वो उसकी वजह से लोगों के लिए सनकी भी बन गया था। मगर आज 3 साल बाद किसी और वजूद पर उसका अक्स देखकर वो बेकाबू हो रहा था। उसके मोहसिन की सारी मेहनत के मुकाबिल बेड पर लेटी लड़की ने उस दीवाने की ज़िंदगी में कदम रखने की वजह से एक ही दिन में उस इंसान की मेहनत को ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से आज वो एक सनकी से बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह बन चुका है। ये तुम क्या कर रहे हो?
वो आंखें फाड़े जो उसे अपने ऊपर झुके हुए देख रही थी, उसको बेखुदी से अपने नाजुक लबों पर झुकते हुए देखती, तड़प कर उसके चौड़े सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती हुई बोली, अपनी जिंदगी का चौथा कत्ल। आंखों में खौफनाक तासुर लिए वो बोझे लहजे में कहता, बेखुदी से उसकी लंबी पलकों पे अपना लब रखकर उसके नाजुक वजूद में खलबली मचा गया। चौथा कत्ल? लबों पे जबान फेरती वो खौफ से फैली आंखों को मजीद फैलाकर उससे दूर होने की कोशिश में सरगर्दा उसकी गिरफ्त में मचलती हुई घुटी आवाज में बोली, हाँ। वो गंभीर लहजे में कहता उसके रुखसार पर झुकने ही वाला था कि वह तड़प कर अपना चेहरा जल्दी से उसकी दस्तरस से दूर कर गई। दूसरी तरफ डॉक्टर राकेश और डॉक्टर रॉबर्ट, जो अंदर हो रहे हाथापाई से शदीद खौफजदा बाहर खड़े थे, उस सनकी को अपनी हद से बाहर निकलता हुआ देखकर वह तड़पने लगे। अंदर वो जा भी नहीं सकते थे क्योंकि डॉक्टर सुंबल की वजह से उसने चैलेंज एक्सेप्ट सिर्फ इसीलिए किया था कि वो इस पेशेंट के पास सिर्फ अकेली जाएगी, कोई उसके साथ उस रूम में नहीं आएगा, और अगर वो पेशेंट बिगड़ा तब भी कोई अंदर नहीं आएगा। और डॉक्टर राकेश ने ये सारी शर्तें मानकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी थी, ये जानते हुए भी कि वो लड़की इस हॉस्पिटल के इंचार्ज की लाडली मुंह बोली बेटी है। फिर भी उसने इस जिद्दी लड़की को उकसाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हर किसी से बात मनवाना खूब जानती है। डॉक्टर राकेश, जाओ उसे रोको, वरना वो सन की पेशेंट आपकी स्टूडेंट और डॉक्टर खान की चहेती बेटी को मार देगा। डॉक्टर रॉबर्ट मिस्टर एन को डॉक्टर सुंबर पर झुके देखकर डरते हुए कहने लगे, डॉक्टर रॉबर्ट, मैं कैसे अकेले रोक सकता हूँ, आप भी चलकर मेरी हेल्प करें। डॉक्टर राकेश संजीदगी से उसे देखते हुए बोले, ओके। डॉक्टर राकेश डॉक्टर रॉबर्ट से कहते हुए उनके पीछे चलने लगे। तभी दोनों को अपने पीछे डॉक्टर खान की रौबदार आवाज़ सुनाई दी। तो वो झटके से पीछे मुड़े और अपने सामने वजाहत के शाहकार 40 साल बारोब डॉक्टर जुरेज खान को देखकर वो खौफजदा होकर रह गए। डॉक्टर राकेश, डॉक्टर रॉबर्ट, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये अंदर शोर कैसा है? डॉक्टर जुरेज खान पुरएतमाद चाल चलते उनके करीब आकर खड़े हो गए और संजीदा नज़रों से उनकी हवाइयाँ उड़ाते चेहरों की जानिब देखते हुए अपने बारोब असली सर्द लहजे में पूछने लगे, डॉक्टर खान, आप? वो दोनों हकलाते हुए एक साथ गोया हुए, हाँ मैं। आप दोनों इस वीआईपी पेशेंट के रूम के बाहर क्या कर रहे हैं, और अंदर कौन है? वो दोनों को तिरछी निगाहों से घूरते हुए पूछने लगे तो उनकी तफ्तीश करने पर वो दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर खान, वो डॉक्टर सुंबल। डॉक्टर रॉबर्ट ने हिम्मत करते हुए बिलाखिर कह दिया। अपनी बेटी का नाम सुनकर वो साकत रह गए। व्हाट, आर यू मैड? उसे क्यों इस पेशेंट के पास अकेले भेजा? वाई? आप लोग जानते भी थे कि वो अभी प्रोफेशनल नहीं है, अभी वो सिर्फ एक स्टूडेंट है। फिर भी आप लोगों ने उसे एक सन की पेशेंट के पास भेजा, एंड मेक श्योर उसने इस पेशेंट के केस को स्टडी भी नहीं किया होगा। एम आई राइट डॉक्टर्स? वो होश में आकर उन दोनों पर भड़कते हुए सर्द लहजे में कहने लगे, जबकि वो 33 साल डॉक्टर्स अपने सीनियर की डांट सर झुकाकर सुनने लगे। यस, दोनों ने एक ज़बान होकर कहा, जिसे सुनकर डॉक्टर जुरेज के गुस्लात मज़ीद तन गए। वो उन्हें सर्द निगाहों से घूरने लगे। ओह शिट, मैं अंदर जाकर इस पेशेंट को काबू करके अपनी बेटी को बाहर निकालूं, फिर मैं देखूंगा आप दोनों को। डॉक्टर्स मेरे रूम में जाकर मेरा वेट करें। उन दोनों को सर्द लहजे में कहते तेज़ी से वो एएन के रूम में दाखिल हुए तो डॉक्टर राकेश और डॉक्टर रॉबर्ट उनकी बात पर डर से बुरी तरह से कपकपाने लगे, क्योंकि वो सिर्फ नाम के सख्त नहीं थे, बल्कि वो असल में एक हिटलर किस्म के इंसान थे। अपने हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही वो कभी बर्दाश्त नहीं करते थे, और आज तो बात उनकी चहेती बेटी की थी, तो वो कैसे उन दोनों को बख्शते? ओह नो डॉक्टर राकेश, मैंने आपसे कहा था डॉक्टर सुंबल को मत चैलेंज दें। देख लिया आपने अपनी लापरवाही का नतीजा। अब मुझ बेकसूर को भी डॉक्टर खान की डांट सुननी पड़ेगी। डॉक्टर जुरेज खान के जाते ही वो बुरी तरह से खौफजदा हो गए। डॉक्टर रॉबर्ट बिला वजह अपने फंसने पर आग बबूला होकर डॉक्टर राकेश की जानिब देखते हुए कहने लगे,